Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting the new chapter. ठीक है, that is now leave this thing. ठीक है, ये होता ही नहीं होता इसके साथ, ये इतनी important चीज़ नहीं है. ठीक है. So we are discussing the new chapter, that is molecular mass spectrometry or mass spectrometry. ठीक. So this is among the most versatile techniques, ठीक है, that we have studied so far. ठीक है, that can be used for structural studies as well as qualitative and quantitative analysis. ठीक है, and its instrumentation that is also different from others. ठीक है, in that it is having different types of techniques. ठीक है, that we will be studying. ठीक है, so it is the most widely applicable of all the analytical tools. ठीक है, available and can provide information about the elemental composition of the samples. ठीक है, the structures of inorganic, organic and biological molecules. ठीक है, similarly the qualitative and quantitative composition of the complex mixtures, structural and composition of the solid surfaces and isotopic ratios. ठीक, so means that almost all information, ठीक है, regarding any structure, ठीक है, that we can get with this technique. ठीक है, MS technique. ठीक है, तो elemental composition भी इससे मुमकिन है, isotopic ratios जो है that can also be determined. ठीक है. Now the first general application of the molecular mass spectrometry occurred in the early 1940s, ठीक है, when the techniques began to be adopted by the petroleum industry for the quantitative analysis of hydrocarbon mixtures produced in catalytic cracking units. Actually, as we say that necessity is the mother of invention. ठीक है, तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें वी आर गेटिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है दे आर गिविंग अस ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, अब हर एक को कैरेक्टराइज करना, उसको क्वांटिफाई करना. ठीक है, सो इट वाज टेकिंग that was a very laborious and cumbersome procedure. ठीक है, so that was taking usually hundreds of hours to complete a single analysis. ठीक है, so in order to shoot that problem, this mass spectrometry that has been developed. ठीक है, so at that time analysis of mixtures of this type which often contain as many as 9 hydrocarbon components were carried out by fractional distillation followed by refractive index measurements of the separate components. ठीक है, so typically 200 hours or more of operator time was required to complete an analysis. ठीक है, 200 means weeks actually. ठीक है, so it was found that similar information could be obtained in a few hours or less. ठीक है, with a mass spectrometer. ठीक है, so beginning in the 1950s these commercial instruments began to be adopted by chemists for the identification and structural elucidation of a wide variety of organic compounds. Then it was generalized to all other compounds as well. Okay? Now the use of a mass spectrometer combined with the invention of nuclear magnetic resonance and the development of IR spectrometry, okay, that revolutionized the way organic chemists identify and determine the structure of molecules. ठीक है, मतलब any compound can be now its structure can be elucidated by these 3 components. ठीक है, आप उसका elemental analysis करें. ठीक है, NMR, IR और MS. ठीक है, so you can get complete information regarding any structure. ठीक है, वो कितना ही unstable क्यों ना हो. ठीक है, so since about 1990 explosive growth in the area of biological mass spectrometry has occurred because of the new ionization methods. ठीक है जी. So now the mass spectrometry is being applicable to determination of the structure of polypeptides, proteins and other high molecular mass biopolymers, यानी जो thermolabile या जो unstable compounds है. ठीक है, so even that can be analyzed by this technique. ठीक है, so we will be discussing the nature of molecular mass spectra. ठीक है, so mass spectra of compounds that are क्या बात है यार. Yes, आपके ग्रुप के साथ क्या मसला है उस्मान? Your group is always miscreant in the class. Any good reason? जी, निश्चित सही के नहीं. हाँ, सीधी बेटर सही.
अगर इंटरेस्ट नहीं अटेंडेंस लगा कि यू कैन गो, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर मास स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो जिस तरह हमने IR स्पेक्ट्रा को हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है, इसी तरह जो NMR स्पेक्ट्रा है, ठीक है। सो दे आर हैविंग सम प्रिंसिपल्स, ठीक है, कि मतलब फील्ड शिफ्ट है या मुख्तलिफ जो चीज़ है, ठीक है। इसके जो स्पेक्ट्रा है देट आर सिंपल, ठीक है, बट देट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट आयोनाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट चेंज विद द टाइप ऑफ आयोनाइजेशन टेक्निक, ठीक है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द डेटा बैंक्स ऑफ द कंप्यूटर वी कैन रिकग्नाइज कि आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर ले, सो यू कैन रिकग्नाइज दैट पर्टिकुलर मास स्पेक्ट्रा ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, एज वी आर डिस्कसिंग इन द कमिंग discussion, ठीक है। So similarly various techniques we will discuss, ठीक है, to form ions, ठीक है। So the major challenge in the mass spectrometry is that how you get ions, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आप तब तक एनालाइज नहीं कर सकते जब तक you get its ion, ठीक है, because we are using actually the mass to charge ratio, ठीक है। So we charge impart charge to that particular compound या उसका जो fraction है, ठीक है, and then we can isolate that with using mass to charge ratio, ठीक है। So we then describe in some detail various types of mass spectrometers, ठीक है। So there are many different types of mass spectrometers, actually they are still being developed, ठीक है। New types of techniques or combination that are coming in these instruments, ठीक है, and these are one of the most expensive instruments in terms of units purchased, ठीक है, as well as its running cost and maintenance that is also very much expensive, ठीक है। We are having one such equipment at our department, inshallah we will be having a demonstration of that as well, ठीक है। ठीक है, now we are coming to the molecular mass spectra, ठीक है, that how it looks like, ठीक है, and how it is interpreted, ठीक है। So that is important to know, ठीक है। So for example we are having a compound, ठीक है, ethyl benzene, ठीक है, this is a compound, ठीक है, and this compound is having molecular weight 106, ठीक है, ये इसकी molecular weight है, ठीक है। अब इसकी अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं, ठीक है, we bombard this molecule with electron beam, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम से हमने इसको बम्बार्ड किया, ठीक है। सो व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड, सो इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हाई वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट कैन snatch or that can remove an electron, ठीक है, with which it passes by, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है that can for example we are having this molecule, ठीक है, and it remove electron from anywhere, ठीक है, one electron वो अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। So now you can consider this over here, ठीक है। Now this is a charged particle, ठीक है, with one electron deficient, एक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, बाकी ये वही ये चीज़ है, ठीक है। इसका मास इतना ही है 106 है, ठीक है, मगर इसमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इज डिफिशिएंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज हैविंग एन जो है उसकी जो मॉलिक्यूल उसका जो वेट है, सो दैट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट एज फार एज द मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। अब ये जो चार्ज इसको अगर हम बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव्ड फ्रॉम एनीवेयर विद इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ दिस process that is usually imparting heat as well, energy provide करता है, ठीक है, and as a result the electron that get excited, the compound that is excited, ठीक है, and during the relaxation process it can break down into any fragment, यानी इसका कोई भी बॉन्ड टूट सकता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। so it can be from anywhere, so it is actually a radical, a charge free radical, ठीक है। so it can break from any जो है ऑफ द बॉन्ड, इनमें से कोई भी बॉन्ड कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी टू द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, ये जो है इसका एक्चुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसमें आप देख लें
So this is the exact actual spectrum of this compound, ठीक है, that is obtained by the electron ionization technique, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये मास टू चार्ज रेशोज है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल दिस पीक है, ठीक है, दैट इज हैविंग ए एम मास टू चार्ज रेशो ऑफ 91, ठीक है। तो एम बाई जेड रेशो मीन्स 91 मीन्स 91 by 1 है ना, ठीक है। एंड दिस 91 in this structure that is corresponding to this benzene with one methyl group that is attached to that, सही है। इसका जो वेट बनता है मोलिकुलर that is 91, ठीक है। तो इसका मतलब है कि this peak is corresponding to this fraction of the molecule, ठीक है, ठीक है जी। यस तो ये दूसरे कंपाउंड जिसका रेट 106, हाँ ना, बिल्कुल। मतलब ये जो है, इसको आपने बम्बार्ड किया, ठीक है। तो जब बम्बार्ड किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई, दिस इज एक्चुअल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें कुछ पीक्स यहाँ पे हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे है, ये जो छोटे छोटे ये भी है, ठीक है। तो ये सारे जो है दैट आर एक्चुअली सम मासेस, ठीक है। और वो मासेस क्या है, वो इसी से बने हैं, ठीक है ना। तो जब आप मॉलिक्यूल को बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, सो इट कैन ब्रेक एट एनी पॉइंट, ठीक है। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी दैट द मॉलिक्यूल ब्रेक एट एनी पॉसिबल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको देख ले, हमारे पास कोई भी जो है मॉलिक्यूल है जो कि ABCD कंपोनेंट से बना है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स, जितना आप इसको, तो बॉन्ड कहीं से भी ये टूट सकता है, ठीक है। मसलन ये बॉन्ड टूट गया, मिथाइल ग्रुप इससे उड़ गया, ठीक है, एंड इट इज लिफ्ट विद दिस वन, सही है, ठीक है जी। सो यू आर गेटिंग, ठीक है, ठीक है। सो यू आर हैविंग, ये जो ग्राफ होते हैं जब मास टू चार्ज रेशो जो है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फिनोमेना है, ठीक। ठीक है। नाउ नोट दैट द प्लॉट शोन इज इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है, ठीक है, शार्प लाइंस है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रम में देयर इज नो जो है पीक्स का कंसेप्ट उसमें नहीं होता, ठीक है, जिस तरह उसमें पीक्स आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट पे एक बार मिलता है, ठीक है, एग्जैक्ट एक पॉइंट पे जो कि इनमें से किसी भी मास टू चार्ज के साथ करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। सो द लार्जेस्ट पीक इन ए स्पेक्ट्रम टर्म एज बेस पीक, ठीक है, इज आर्बिट्ररी असाइंड ए वैल्यू ऑफ 100, यानी दिस इज ये जो पीक, ये बार की ये जो ऊंचाई है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट आर्बिट्रेरली असाइंड, यानी उसमें जब आप वो मास टू चार्ज जब आते हैं, बम्बार्ड होते हैं, ठीक है, एंड दे आर रिकॉर्डेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कितने स्ट्राइक हो गए, ये कितने हो गए, ये कितने हो गए, ठीक है। तो उसको जो है कंप्यूटर क्या करता है कि बेस पी को वो 100 फॉर एग्जांपल असाइन करता है, ठीक है, टोटल वैल्यू, और बाकी को उसके रिलेटिवली करता है, ठीक है, जस्ट टू गेट दिस बार्स, कि मतलब ये बार्स जो है ये कितना जो है इसकी हाइट कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दीज आर जस्ट आर्बिट्ररी assigned values, ठीक है। The heights of the remaining peaks are then computed as a percentage of the base peak height, ठीक है। Now modern mass spectrometers are programmed to automatically recognize the base peak, ठीक है। They then normalize the remaining peaks in the spectrum relative to the base peak, ठीक है। base peak से ज़्यादा important peak जो है that is molecular ion peak, ठीक है, यानी in terms of analysis वो ज़्यादा important है, ठीक है जी। अब आयंस को आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द चैलेंज, ठीक है। सो यू आर हैविंग ए लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है, ठीक है। सिमिलरली थर्मोलेबाइल है, थर्मोस्टेबल है, ठीक है, बायोलॉजिकल्स है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, कम है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट वी आर हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन सोर्सेज, ठीक है। सो वी आर हैविंग these 3 types of sources, ठीक है। गैस फेज सोर्सेज को एक्चुअली हम क्लासीफाई करते हैं इंटू 2 टाइप्स, ठीक है, हॉट सोर्सेज
और सॉफ्ट सोर्सेज, ठीक है। ठीक है, हार्ड सोर्सेज जो है, जो गैस फेज स्पेक्ट्रा है, ठीक है, गैस फेज जो टेक्निक्स है, दे आर हार्ड टेक्निक्स, ठीक है, सॉरी ये नॉट सो हार्ड टेक्निक्स, ठीक है। ठीक है, हार्ड टेक्निक्स एज द नेम इंडिकेट, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, ठीक है, एंड देयर आर मोर फ्रैक्शनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कंट्री टू दैट जो सॉफ्ट सोर्सेज है, ठीक है, सो दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिसॉर्प्शन फिनोमेना, ठीक है। डिसॉर्प्शन का मतलब है कि वी कन्वर्ट द आयंस इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड और जो है लिक्विड स्टेट, ठीक है, उसको यानी विदाउट काजिंग देम टू वोलेटिलाइज हम उसको जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसमें जो है जो गैस फेज स्पेक्ट्रा है, ठीक है, तो दे आर हार्ड टेक्निक स्पेक्ट्रा, ठीक है, यानी उसमें जो हार्ड टेक्निक दे आर यूज, और ये बाकी जितनी भी है तो दे आर टर्म्ड एज सॉफ्ट टेक्निक। एक्चुअली दीज आर सिमिलर टेक्निक्स, ठीक है, सेम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो इसमें से हम डिस्कस करेंगे, यूजली जो क्वेश्चन आता है इसी ये वही है कि डिस्कस फॉर एग्जांपल एनी टू टेक्निक्स की फेब है और लेट सपोज जो है माल्डी है, ठीक है, डिस्क्राइब माल्डी है फेब फॉर एग्जांपल, ठीक है, बस सिंपल, इससे अक्सर इस तरह की ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह की आती है, ठीक है। ऑल्दो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर, ठीक। तो इसमें जो है गैस फेज जो स्पेक्ट्रा, इसमें इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक है द मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल, ठीक है, एंड आल्सो एफिशिएंट भी है आजकल भी, दैट इज़ यूज, ठीक है, जिसमें एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज एन आयोनाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। केमिकल आयोनाइजेशन है जिसमें रीजेंट गैसियस आयंस जो है उससे हम काज करते हैं आयोनाइजेशन। इसी तरह फील्ड आयोनाइजेशन है, हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। डिसॉर्प्शन में फिर हमारे पास जो है फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन है, मैट्रिक असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन है, ठीक है। प्लाज्मा डिसॉर्प्शन है, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट है, सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, सिम्स, ठीक है। थर्मोस्प्रे आयोनाइजेशन है, टीएस। इसी तरह एम्बिएट डिसॉर्प्शन है जिसमें डिसॉर्प्शन इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन है। इसमें जो है प्री ट्रीटमेंट थोड़ा कम होती है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिस तरह फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, या जो है पेप्टाइड्स वगैरह है, दैट आर हाईली सेंसिटिव, ठीक है, और अनस्टेबल, तो उसको हम इस जो है करते हैं, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट एनालिसिस इन रियल टाइम है, ठीक है। तो इनमें से ये तकरीबन सारे इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसमें जो है अब you will be getting different spectra depending on the type of technique that you are using, ठीक है। For example, yes, ठीक है। For example, you are ठीक है, this is the same molecule, ठीक है। The mass spectrometry for this is a hard technique and this is a soft technique, ठीक है, of the ये केमिकल आयोनाइजेशन है ये वाला, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन है, ठीक है। अब दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? जिस इसमें पीक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फ्रेगमेंट्स आर न्यूमरस, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंपल जो है पीक्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की अपनी एडवांटेजेस है, ठीक है, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इसमें अगर आपके पास जो है आयन पीक अगर नहीं आता, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है, तो बाकी का आप कोरिलेट नहीं कर सकते पर, ठीक है। सो यू मस्ट गेट वन पीक, अगर छोटा क्यों ना हो, ठीक है, मगर आपके पास एक मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो आना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है इसमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ठीक है, सो यूजुअली दैट इज़ द प्रोमिनेंट, ठीक है, और उसके साथ एक या दो बेस पीक जो है वो भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो उस पर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बिठा देते हैं, ठीक है, सो दैट जस्ट टू गेट इट चार्ज्ड, और उसका जो बाकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वही रहता है, ठीक है। तो मतलब ये कि आपके पास लेट सपोज एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एंटीबॉडी है, और उस पर आपने जस्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया, ठीक है, यू गॉट दैट चार्ज, ठीक है। अब उसका अगर लेट सपोज 30,000 उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है,
तो उसका मास टू चार्ज रेशियो वही 30,000 रहेगा, बिकॉज दैट इज हैविंग जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही। So the starting point for a mass spectrometric analysis is the formation of gaseous analyte ions, and the scope and the utility of a mass spectrometric method is dictated by the ionization process. ठीक है, the appearance of mass spectra for a given molecular species strongly depend on the method used for ion formation. ठीक है, list many of the ion sources that have been used in molecular mass spectrometry. ठीक है, note that these methods fall into 3 major categories. ठीक है, gas phase sources, desorption sources and ambient desorption sources. ठीक है, with a gas phase source the sample is first vaporized, ठीक है, and then ionized. With a desorption source, however, the solid or liquid state sample is converted directly into gaseous ions. ठीक है, an advantage of the desorption source is that they are applicable to non-volatile, ठीक है, and thermally unstable samples. ठीक है, यानी इसमें हम मॉलिक्यूल को डिसॉर्ब करते हैं। ठीक है, जस्ट उसको एक सरफेस में हमने इस तरह सॉर्ब किए हुए एड्जॉर्ब, ठीक है, और उसको हम जो है हवा में उड़ा देते हैं, फिर उसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, सो एम्बिएंट सोर्सेज अलाउ डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन विद मिनिमल सैंपल प्री-ट्रीटमेंट एंड विदाउट द इनक्लोजर्स ऑफ टिपिकल आयोनाइजेशन सोर्सेज। ठीक है, currently commercial mass spectrometers are equipped with accessories that permit interchangeable use of, ठीक है, several ionization sources जो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, now gas phase sources are generally restricted to the ionization of thermally stable compounds, ठीक है, that have boiling points less than about 500 degrees centigrade. ठीक है, in most cases this requirement limits gaseous sources with molecular masses of less than 1000 डाल्टन, यानी छोटी मालिक्यूल को हम उससे जो एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, डिसॉर्प्शन एंड एम्बिएंट सोर्सेज विच डू नॉट रिक्वायर वोलेटिलाइजेशन ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल्स आर एप्लीकेबल टू एनालाइट्स हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ लार्जर। ठीक है, 5000 और से ऊपर वाले। ठीक है, उसमें जो है उस पर डिसॉर्प्शन और एम्बिएंट वाले सोर्सेज हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, एंड आयन सोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड एज बीइंग हार्ड, बस ये ख़त्म करना, हार्ड एंड सॉफ्ट सोर्सेज। ठीक है, हार्ड ionization sources imparts enough energy to an analyte molecule to leave them in a highly excited state. ठीक है, relaxation then involves the rupture of bonds producing fragment ions that have mass to charge ratios less than that of the molecular ion. ठीक है, soft ionization sources are cause little fragmentation, thus the mass spectrum from a soft ionization source often consists of molecular ion peaks and only a few if any other peaks. ठीक है, this is the example. ठीक,